نیزے پہ سر ستمگر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا. دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. ان للہ و انا الیہ راجعون. یحییٰ ابن زکریا کے عوض میں ہم نے 70,000 مارے ہیں اور تمہارے نواسے کے عوض میں 70,000 اور مارے جائیں گے. کل کتنے ہوئے؟ 1,40,000. ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں زیادتی ہو رہی ہے، مکان گر گئے، بچے شہید ہو گئے اور یہ 57 ممالک میں لوگ خاموش بیٹھے ہیں. یاد رکھنا یہ مجرمانہ خاموشی کی سزا تم کو بھی ملے گی. اب مجھے جواب دو، جب سمنان میں علی کے پوتے کو حکومت کی پرواہ نہیں تھی تو کربلا میں علی کا بیٹا کیا حکومت کی پرواہ کرتا؟ گود میں لیا فاطمہ نے، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا. چھاتی سے لگایا فاطمہ نے، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا. جھولے پہ لٹایا فاطمہ نے، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا. کپڑے تبدیل کرائے فاطمہ نے، خیال ہے بیٹا شہید کیا جائے گا. جتنے دنیا میں کرمنل ہیں نا، یہ گنڈے ہیں، دوسروں کو پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والے، زمینیں چھیننے والے. یہ سب کم سے کم 10,000 لوگوں کو مرید کر لیتے، اس لیے کہ سب جانتے تھے، سب کو معلوم تھا کہ اگر حسین کو بچایا گیا تو اسلام کون بچائے گا، قرآن کون بچائے گا، سجدوں کا وقار کون بچائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت سے سلام کا جواب تو دے دیجئے. حضرات، آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور شاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، غیاث دارین، موتی کونین، راس الوفا، وجہ الصفا، شمس الضحا، بدر الدجا، آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بار اور اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بات پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. محترم حضرات، آج ہم اور آپ عاشورہ کے دن عرس علیمی منا رہے ہیں اور نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ اس محفل پاک میں حاضر ہیں. محب محترم حضرت مولانا عرفان صاحب علیمی، انہوں نے محبت کا ساغر میمون حاضر کیا جس کی پاسداری کرتے ہوئے میں حاضر خدمت ہوں. دو مصرے نظر ہیں، سماعت فرمائیں. دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. ان للہ و انا الیہ راجعون. ان للہ و انا الیہ راجعون. 4 مثلیں اور حاضر ہیں، توجہ کیجئے. صبر اور ظلم کو یکجا نہیں ہونے دے گا. صبر اور ظلم کو یکجا نہیں ہونے دے گا. کربلا خین کو رسوا نہیں ہونے دے گا. دیکھ کے نیزے پہ سر ستمگر سے زینب نے کہا. دیکھ کے نیزے پہ سر ستمگر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا.
मोहतरम हजरात, ये उर्स अलीमी है और आबरू अहले सुन्नत हजरत शाह अब्दुल अलीम मेरठी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे मोहब्बत करने वाले यहाँ मौजूद हैं। उलमा से आपने सुन लिया होगा, दुनिया के कई ममालिक में सुन्नियत का परचम उन्होंने लहराया है। न जाने कितने लोगों को दाखिले इस्लाम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सुना था, मगर मॉरिशस में मैं देख करके आया उनकी खिदमत, उनकी तबलीग। स्कूल भी बनाए, कॉलेज भी बनाए, मदरसा भी बनाया, मस्जिद भी बनाया। अल्लाह ताला उनकी हम सबको बरकतें अता फरमाए। मोहतरम सामीन किराम, आपने उलमा से बराबर अपने अपने महल्लों में सुना होगा, महफिलों में सुना होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम अली मकाम हैं। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। इतने में सरकार की आंख से आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। या रसूल अल्लाह, अभी आप अपने बेटे से मोहब्बत कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, अब आपकी आंख में आंसू। नबी फरमाते हैं, अभी अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने खबर दी है कि जो बेटा आपकी गोद में है, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे। एक रिवायत में है कि फरिश्ते, बारिश के फरिश्ते ने इजाजत मांगा और सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा, या रसूल अल्लाह, जो बेटा आपकी गोद में है, आपकी उम्मत के लोग इसे शहीद कर देंगे। मैं एक बात यहां पर पूछना चाहता हूं, पैगंबर की आंख में आंसू तो आए, नबी रो तो पड़े, मगर रसूलुल्लाह ने यह दुआ नहीं की, आए अल्लाह मेरे बेटे हुसैन की हिफाजत फरमा ले, मौला शहादत से मेरे बेटे को बचा ले। दुआ की तो ये किया, मेरे मौला जब ऐसा वक्त आ जाए तो मेरे बेटे हुसैन को सब्र अता फरमाना, इस्तिकामत अता फरमाना, साबित कदमी अता फरमाना। मगर रसूल ये दुआ नहीं करते कि शहादत से महफूज फरमा दे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पैगंबर ये दुआ नहीं कर रहे, रसूल की दुआ में तो वो असर है, अगर उंगली उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, पैगंबर की मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े, रसूल चाह लें तो दरख्त सहाबा के घरों में नजर आए। या रसूल अल्लाह, आप दुआ नहीं करते? नबी ने बचाने की दुआ नहीं की। इस हादसा आयला की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हो गई, मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। गोद में लिया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। छाती से लगाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। झूले पे लेटाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। कपड़े तब्दील कराए फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। सर पे तेल डाला फातिमा ने, ख्याल से बेटा शहीद किया जाएगा। मगर वो भी बचाने की बात नहीं करती। माँ तो माँ होती है, वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, वो माँ जो बेटे के सोने फिर सोए, वो माँ नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने छाती से लगाकर सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देख कर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। इतना प्यार करने वाली माँ तो माँ होती है, चाहे शहीद की माँ हो, चाहे गाजी की माँ हो, इतना प्यार खातून जन्नत को, मगर वो भी बचाने की बात नहीं करती। अल्लाह अकबर। मौला अली शेर खुदा सफर सिफीन से वापस पलटे, साथियों से कहा ठहरो, करबला आ गया, मेरा बेटा सफर करके आएगा, गजावे यहाँ रखे जाएंगे, घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, शहादत यहाँ होगी, खून यहाँ बहेगा। अली को भी मालूम है, खानदान को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, अहले बैत को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, अज़वाजे मुतहरात को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता, इसलिए कि सब जानते थे, सबको मालूम था कि अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, सजदों का वकार कौन बचाएगा। मोहतरम सामीन किराम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वलीद को यही तो लिखा था यजीद ने,
कि इमाम अली मकाम को बुलाओ, मेरी बैत ले लो। इमाम हुसैन ने फरमाया कभी नहीं हो सकता कि मैं वो अपना हाथ यजीद के हाथ पे दे दूं जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया, जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने चूमा है। कभी नहीं हो सकता कि एक शराबी के हाथ में दे दूं। आप और हम तो बहुत आसानी से ये बात समझ रहे होंगे कि अरे हाथी का तो मसला था, पैसे की तो बात थी, चंद लम्हे समासना था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हुसैन ने शराबी के हाथ पर हाथ दे दिया होता, अगर हुसैन ने यजीद जैसे आवारा और गुंडे के हाथ में हाथ दे दिया होता, तो याद रखना इस्लाम की रूह निकल जाती। और साथ में जितने दुनिया में क्रिमिनल है ना, ये गुंडे हैं, दूसरों को प्लाटों पे कब्जा करने वाले, जमीनें छीनने वाले, ये सब कम से कम 10-10 हजार लोगों को मुरीद कर लेते। ये डरा डरा के मुरीद कर लेते, खौफ ज़दा करके मुरीद कर लेते, इनके सबके मुरीद नजर आने लगते। हुसैन ने यही पैगाम दिया कि सुन लो, हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो इस्लाम पर मर जाने में आता। इमाम अली मकाम ने यजीद की बैत को कबूल नहीं किया। क्यों? हुसैन तो कह रहे थे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना सर दे दूंगा, क्योंकि ये सर अली के बेटे का है, ये सर फातिमा के लाल का है, ज़ैनब के भाई का है, सकीना के बाप का है, अली अकबर के वालिद का है, कासिम के चचा का है, अनो मोहम्मद के मामू का है। मगर ये जो हाथ देख रहे हो, ये हाथ 1,24,000 कमो बेश अंबिया और मुरसलीन की विरासत का नाम है। इस हाथ में नबूवत का हाथ है, इस हाथ में रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। गला कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। मोहतरम सामीन इकराम, एक बात बड़े प्यार से मुझे बताइए, 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम करबला पहुंचे थे। इन यजीदियों ने क्या क्या नहीं अपनी किताबों में लिखा है। कई तबके से तकरीरें हो रही हैं इस वक्त, बड़ा फितनों का दौर चल रहा है। तकरीर राफजी भी कर रहा है, तकरीर खारजी भी कर रहा है, लेकिन राफजी तो इस तरह तकरीर कर रहे हैं कि इमाम हुसैन को मजबूर साबित करने में लगे हैं, और ऐसी बेबसी की बातें करते हैं कि अगर हुसैन को मौका मिल जाता तो करबला से वापस आ जाते। और ये खारजी तो इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं कि इमाम हुसैन को करबला जाना ही नहीं चाहिए था, वो गए क्यों थे, वो तो हुकूमत चाहते थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी प्यारी आवाम से, न खारजियों को सुनो न राफसियों को सुनो, अगर सुनना है तो ये अहले सुन्नत वल जमात को सुनो। ये जो इमाम अली मकाम की शहादत बयान करते हैं, इनके हाथों से शरीयत का दामन कहीं नहीं छूटता। आप गौर करें, लिख दिया कि हुसैन करबला गए थे और वो हुकूमत चाहते थे। मैंने कहा नादान, वो हुसैन हुकूमत का क्या मुतालबा करेंगे? भूल गया तू? कौन नहीं जानता सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के चौचवी को, सिमनान के बादशाह? और जब ख्याल आया हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत का और उनकी बादशाहत के जमाने में, जानते हो चींटियां कहती थी हाथियों से, संभाल कर कदम रखना, ये मखदूम अशरफ का दौर चल रहा है, अगर हमारी छाती पर तुम्हारा कदम पड़ गया तो मुंसिफे वक्त से शिकायत कर दी जाएगी। हजरात, मुझे मोहब्बत के साथ बताओ, हुजूर मखदूम अशरफ के चौचवी ने सिमनान के तख्त ताज को ठोकर मारा और कहा मुझे हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत में आ रहा है। अब मुझे जवाब दो, जब सिमनान में अली के पोते को हुकूमत की परवाह नहीं थी तो करबला में अली का बेटा क्या हुकूमत की परवाह करता? बास ने तो यहां तक लिख दिया कि हुसैन कहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। मैं कहता हूं नादानो, वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया।
बादशाह अहलों ने यहां तक कहा कि वो लड़ाई के लिए गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया का बड़ा से बड़ा कोई जर्नल ले आओ कि अगर लड़ाई का इरादा हो तो साथ में क्या 6 महीने का दूध पीता बच्चा मैदान जंग में कोई ले जाएगा? कोई 7 साल की बेटी सकीना ले जाएगा? कोई बहन ज़ैनब ले जाएगा? कोई बीवी को ले जाएगा? बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन ले जाएगा? हुसैन लड़ाई के लिए नहीं गए थे। नोट करो, जब यजीद ने सर उठाया था और उस दौर में सबसे बड़ा ये आतंकी पैदा हुआ था। याद रखना, सबसे बड़े आतंकवादी का नाम यजीद है। जब इसने सर उठाया तो हुसैन खड़े हो गए। क्यों? ये इस्लाम है। इस्लाम किसी आतंकवादी को पसंद नहीं करता। जब अबू जहल ने सर उठाया और आतंक फैलाया तो सहाबा ने मैदान बद्र में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर जब यजीद ने सर उठाया तो इमाम अली मकाम मक्का और मदीना छोड़कर निकल पड़े और करबला में आकर के डट गए और यजीद की ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी और कहा, ना इस्लाम बेकलमा को बर्दाश्त करता है, न इस्लाम बाकलमा को बर्दाश्त करता है। यजीदियों, अब तक सर काटने वाले को फातेह कहा जाता था, मगर अब करबला में तो सर कटाने वाले को फातेह कहा जाएगा। मोहतरम खामईन किराम, एक आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? ज़हन हाजिर है। मैं अपनी कमजोरी कभी नहीं बताता हूं, क्योंकि कमांडर अगर कमजोरी बता दे तो फौज भाग जाएगी मैदान छोड़। पूरी रात हो गई, मैं राजकोट में था, गुजरात में। सुबह आया 10 बजे की फ्लाइट से। आशूरा का पूरा प्रोग्राम, दुआ, तकरीर दारुल उलूम अली हसन अहले सुन्नत साकिनाका में, फिर आपकी मोहब्बत में हाजिर हो गया। अब यहीं से मैं पनवेल जा रहा हूं। बहरहाल दुआ फरमाइए, सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में अल्लाह ताला इतने काम ले लेता। आप लोगों की तवज्जो से अल्लाह ताला ये काम अंजाम देने की तौफीक अता फरमाता है। मैं एक बात आखिरी अर्ज कर दूं, बड़ी अहम बात है, उसे सुन लीजिए आप। उलमा से आपने बराबर सुना होगा जिक्र शोहदाए किराम की महफिलों में 61 हिजरी में इमाम हुसैन शहीद हो गए, 64 हिजरी में यजीद मर गया और 67 हिजरी में मुख्तार सकफी ने और दीगर लोगों ने बदला ले लिया। तकरीबन 1,40,000 यजीदी मारे गए। कितने मारे गए थे? अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वही फरमाई थी, मेरे महबूब याहया इब्ने ज़करिया के एवज में हमने 70,000 मारे हैं और तुम्हारे नवासे के एवज में 70,000 और मारे जाएंगे। कुल कितने हुए? 1,40,000। और करबला में आए कितने थे? 22,000। जब 22,000 सामने आए थे तो 1,40,000। मुस्तफा बाजार वालों, इनका गुनाह यह था कि हुसैन का पानी बंद किया गया, ये खामोश थे। हुसैन से जंग की गई, ये खामोश थे। औलादों को मारा गया, ये खामोश थे। खेमे उजाड़े गए, ये खामोश थे। सैयदानियों की चादरें छीनी गई, ये खामोश थे। रुखसारों पे तमाचे मारे गए, ये खामोश थे। इमाम अली मकाम का सरे अक़दस काट करके नेज़े पे घुमाया गया, ये खामोश थे। गोया 22,000 तो जंग कर रहे थे, बकिया जुल्म के खिलाफ सब खामोश थे। जुल्म के खिलाफ ये आवाज नहीं उठा रहे थे। ये मुजरिमाना खामोशी थी जिसकी सजा इन सबों को मिली, और ऐसे लोगों को मिलती है। मुझे यही तो अफसोस है, और यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर सबके दही जमी हुई है। बोलो, सबके दही जमी हुई है। बात क्या है? सबके दही जमी हुई है। जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में ज्यादती हो रही है, मकान गिर गए, बच्चे शहीद हो गए, और ये 57 ममालिक में लोग खामोश बैठे हैं। याद रखना, ये मुजरिमाना खामोशी की सजा तुमको भी मिलेगी। इसलिए याद रखो, कहीं भी जुल्म हो, तुम्हारे मोहल्ले में जुल्म हो, तुम्हारे मुल्क में जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ।
इमाम अली मक़ाम का करबला में यही मकसद था, हक बोलो, हक के साथ रहो, चाहे अकेले रह जाओ, इसलिए कि दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी मगर हक तुम्हारा साथ ना छोड़ेगा। तुम हक के साथ रहोगे, हक तुम्हारे साथ रहेगा।